Okay, let us quickly dive into the next part. What do we see now? We see the inaugurational functions have started. Okay, चैप्टर गोज अहेड लाइक कुछ देर बाद ही लोगों ने लाइक स्पीच वगैरह सुन लेने के बाद द representation show started to celebrate the victory of democracy. Okay, and it started with the show of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. तो इनके द्वारा representation था, जो भी आपका साउथ अफ्रीका की आर्म्ड फोर्सेस है, be it your army, be it your air force, be it your navy, they all have some programs to be shown in here. तो सबसे पहले आसमान पे representation उन्होंने शुरू करा, and this representations had two purpose, right? दो पर्पस थे. क्या क्या पर्पस था? पहला तो भाई साउथ अफ्रीका की पावर शोकेस करना है ना, दुनिया भर से लोग आए थे. सो दिस डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर वाज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ warning that nobody shall mess with South Africa anymore, how self-sufficient they are and how strong they are in terms of military aid. So they showed that. And second purpose behind this show was this, in order to show or prove their loyalty to the now democracy. अभी तक तो the same military, the same army, the same air force was with this white white government, right? And now that the tables have turned, democracy has come to the power, these the loyalty of the military now lies with the democracy. जो भी आपकी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी आपकी रूलिंग पार्टी होती है, मिलिट्री उसके सपोर्ट में होती है. ठीक है, अभी डेमोक्रेसी पावर में है तो मिलिट्री किसके सपोर्ट में है? डेमोक्रेसी के सपोर्ट में है. तो उनका ये रिप्रेजेंटेशन was also had the purpose of showing its loyalty to the newfound democracy in South Africa. Okay, तो दो पर्पस थे. एक, to show how self-sufficient South Africa is in terms of military power, and second purpose was to show its loyalty, to showcase its loyalty to the present form of government, that is the democracy, that is the African National Congress. Then okay, and because it is democracy, obviously this kind of government, it has been selected, it has been chose by fair elections. Hmm? Proper elections के बाद. Only moments before, the high generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. So he said that जैसे जैसे आर्मी ऑफिशियल सामने से गुजर रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी हुई है, यूनिफॉर्म पर बहुत सारे मेडल्स ऑफ ब्रेवरी वगैरह भी हैं, एज दे आर पासिंग बाय दे आर सैल्यूटिंग टू नेल्सन मंडेला. And though Nelson Mandela accepted their salutes, he was standing there, but he also had this in his mind. He was very much mindful of the fact, लिखा है ना, किताब में लिखा हुआ है, I was not unmindful of the fact. And I told you, जब हमने क्लास में फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे, that when we use two negatives in order to provide a impact of a very emphatic sentence, what is it? It is litote, है ना. तो not unmindful, क्या है ये एक litote का एग्जाम्पल है. So he said that I was not exactly unmindful, या फिर I was very much mindful of the fact कि ये same officers, अभी कुछ साल पहले हम अगर चले जाएं तो यही ऑफिसर्स हमें अरेस्ट करते थे, हमें कल्प्रेट माना करते थे. ओके, बिकॉज हम लोग डेमोक्रेसी को उस टाइम सपोर्ट कर रहे थे, एंड दे वर विद द वाइट गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम. तो हम इनके लिए क्या थे? गुनहगार थे, और ये हमें पकड़ने के लिए तब आया करते थे. ऐसे सल्यूट नहीं करते थे, ऐसे रिस्पेक्ट पे नहीं करते थे. देन ही सेड दैट, एंड आफ्टर दैट अगेन इम्पाला जेट्स का एक सुंदर सा रिप्रेजेंटेशन आसमान में इन्होंने देखा. एंड व्हाट डिड द जेट्स डू? जेट्स
leave behind this trail of smoke in the color of black, red, green, blue and gold, जो कि किसके कलर है, जो कि नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे. And he said this day of inauguration, it was symbolized by playing of two national anthems. ठीक है, एक पुराना नेशनल एंथम्स जब वाइट सुपरमेसी थी उस टाइम का नेशनल एंथम, और एक अब का नया वाला national anthem. So basically, two national anthems were sung on the day of inauguration, the national anthem of the blacks and the national anthem of the whites. And he said that वाइट वालों का जो नेशनल एंथम है उसको हम ब्लैक पीपल नहीं जानते थे अच्छे से, एंड जो हमारा ब्लैक वाला नेशनल एंथम था उसको, उसके लिरिक्स वाइट पीपल नहीं जानते थे. तो on the day of inauguration it was happening for the first time that the both national anthems were played and people were trying to sing along. And he said जैसे जैसे समय बीतेगा हमको इनका और इनको हमारा नेशनल एंथम अच्छे से याद हो जाएगा, and it will then showcase the complete unity of the country. तो आज ये जो दो नेशनल एंथम साथ में बजाए जा रहे हैं, इट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ दिस जर्नी ऑफ यूनिटी, है ना, कि कैसे आज दोनों ने आपस में यूनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है. हिंस दे आर ट्राइंग टू सिंग ईच अदर्स नेशनल एंथम. ऐसे ये सिम्बॉलिक हुआ. देन ही सेड दैट इनाग्रेशन वाले दिन ही वॉज फीलिंग ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, है ना. उनको फ्लैशबैक याद आ रहे थे, पुराने टाइम में क्या क्या हुआ उन्हें सब कुछ याद आ रहा था, एंड उन मेमोरीज की वजह से ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड. एंड ही सेड दैट इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी हुई आपकी 1901 से लेकर के 2000 तक की एरा. एंड ही सेड उसका फर्स्ट डेकेड मतलब 1901 से लेकर 1910 तक का टाइम. बेसिकली नेल्सन मंडेला जब पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले से, सडनली दिस वॉज समहाउ डिसाइडेड दैट द कलर ऑफ स्किन डिसाइड्स योर सुपीरियोरिटी, द लाइटर इट इज़ द मोर सुपीरियर यू आर. एंड ये जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, इन्होंने अपने आपस के डिफरेंसेस को दूर किया एंड दे डिसाइडेड हम किससे स्ट्रांग हैं, हम किससे बेटर हैं, हम इसी कंट्री में रहने वाले ब्लैक या फिर पीपल ऑफ कलर से ज़्यादा बेटर हैं. I'll prefer you use words people of color in your answer. Okay. Okay, so this happened. And तभी से अपार्थाइड सिस्टम आपके 1901 somewhat 20th century के बिगिनिंग से ये सिस्टम रूट्स गेन करना शुरू करता है. And the structure which was created on the basis of this kind of racial या color discrimination, it it was proved to be one of the harshest and most inhuman society that ever existed, है ना. यहाँ पे लोगों के स्किन के कलर के बेसिस पे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा था. एंड नाउ दैट इट इज़ द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना, एज आई सेड ये जो आपका इनाग्रेशन सेरेमनी है, इट वॉज टेकिंग प्लेस वेन ऑन 10th May 1994, सॉरी 1994, राइट. तो ही सेड दैट अब जब 20th सेंचुरी एकदम ख़त्म होने वाली है उस टाइम पे फाइनली वी हैव बीन एबल टू ओवरथ्रो दिस सिस्टम ऑफ अपार्थाइड ना. लगभग 100 साल का समय, कितना लंबा टाइम है जब इतनी ज़्यादा इनह्यूमन चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही थी. एंड नेल्सन मंडेला ऑल्सो टोल्ड अस दैट ही हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनाग्रेशन वो खुद लगभग 80 साल के थे. And he said that now that I'm of 80 years old, this system has overturned. Now we have democracy and we have been successfully able to overthrow apartheid. Like now people will come in the positions of authority, on the position of authority, but that will be on the basis of their capability rather than their skin color. Then he said the day had come about to unimaginable sacrifice of thousands of people. He started to say that, and ये जो दिन है, जो इनाग्रेशन का दिन है जिसमें हम सब आज बैठे हुए हैं, ये दिन हमें ऐसे ही नहीं नसीब हो गया है. It has come to us through so many uncountable unimagined sacrifices by the people of our earth, है ना.
हमारे ही बीच से लोगों ने इतना बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस किया है, अपनी जान का बलिदान किया है, लगातार स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा है, तब जा करके हम आज के इस इनॉग्रेशन के डे के विटनेस बन पा रहे हैं. ही सेड दैट जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी while trying to attain this freedom for our country, they have endured so much. उन्होंने बहुत झेला है, उन्होंने बहुत ज़्यादा भुगता है, बहुत ज़्यादा करेज उन्होंने दिखाया during all that fight for justice. And then he said that inauguration के day वाले दिन he felt as he had felt on many other days, that he himself, who is basically presenting South Africa to the whole world as the symbol of struggle, right? He said, I am nothing more than the sum total of all the people behind me जिन्होंने स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका में पूरा पूरा पार्टिसिपेशन करा था. He said, I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now begin again with me. He said that बहुत से लोगों की जान चली गई इस सपने को देखते देखते, इस सपने को सच में बदलते बदलते. And he said that हाँ, I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought in. He said that though I am very happy आज इनॉग्रेशन सेरेमनी में, लेकिन आई फील दिस कंस्टेंट पेन इन माई हार्ट, द पेन दैट ये जो हैप्पीनेस को मैं आज विटनेस कर पा रहा हूँ कि देश को फाइनली वो मिल गया जिसका हमने एक टाइम पे सपना देखा था, मेरे बहुत से साथ वाले वो सपना मेरे साथ में सच होता हुआ नहीं देख पाए. दे लॉस देयर लाइव्स while fighting for the cause of liberty, while fighting for the cause of justice, right? तो his heart pains, उनको बिल्कुल दर्द फील होता है कि मैं तो ये चीज़ विटनेस कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि जो सपना हमने देखा था वो आज सच हो गया, लेकिन मेरे साथ वाले कई लोग, कई फ्रीडम फाइटर्स इसको, इस सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देख पाए. Then he said that this policy of apartheid, it it had left so many deep impressions on people, right? बिल्कुल मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया साउथ अफ्रीका के लोगों को इस लगभग 100 साल चले हुए अपार्थाइड के सिस्टम में. एंड ही सेड दैट बहुत ही लंबा समय लगेगा हमें इस चीज़ को ओवरकम करने में. सही मायनों में हम पता नहीं इस चीज़ को कब ओवरकम कर पाएंगे. हो सकता है महीने लगे, हो सकता है साल लगे, हो सकता है मल्टीपल ईयर्स लगे, एंड हैवी चांसेस मैनी जनरेशन्स भी लग सकती हैं इस ट्रॉमा को ओवरकम करते करते, इस कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करते करते. ओके. But the decades of operational brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulas, the Chief Ludulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subuquays of our time. अब ये जो नाम है, what are they doing? They are basically representing सिनेक्टकी. बेसिकली पढ़ा होगा, ए फिगर ऑफ स्पीच होता है सिनेक्टकी, जहाँ पे हम क्या करते हैं, a part is used to represent the whole or reverse. Whole is used, WHOLE वाला whole is used to represent a part. तो यहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर का नाम है, मान लीजिए चीफ लुडुलिस, राइट? But this one name is representing all the people who were full of courage, who participated in this fight for justice, right? तो एक नाम तो एक है, लेकिन इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द पीपल जिन्होंने उस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? सिनेक्टकी, राइट? सो ही सेड ये जो मेंटल ट्रॉमा साउथ अफ्रीका के लोगों को हुआ है, राइट, वाइल बीइंग द विटनेस ऑफ ऑनगोइंग अपार्थाइड, इस कॉम्प्लेक्स को दिमाग से निकलते निकलते सालों का समय लग सकता है. नॉट जस्ट years, maybe generations, hundred of years it will take for the people to recover from this mental trauma, है ना? जो कंडीशनिंग उनकी हो गई है, उन्होंने अपने आप को इंफीरियर कंसिडर करते हुए देखा है, ना सिर्फ देखा है बल्कि उनके मन में भी ये बातें काफी गहराई से बैठ गई हैं. तो इस ट्रॉमा को अनलर्न करते करते, ओवरकम करते करते बहुत लंबा समय होने वाला है. तो ही सेड ये जो अपार्थाइड का सिस्टम था, इट हैड टू काइंड्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन पीपल. एक
मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो गए लोग, उनके मन में ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ गया कि हम कम हैं, हम वाइट पीपल के बराबर नहीं हैं, हम इन्फीरियर है, ये चीज़ उनके मन में बैठ गई. एंड द you must have heard this proverb that mental scars are way more fatal than physical scars, है ना. जो चोट हमें शरीर पे लगी है, बॉडी पे लगी है, वो तो भर जाएगी कुछ समय पे, लेकिन जो चोट हमारे इमोशंस पे लगती है, हमारी साइकी पे लगती है, वो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है, उसको अनलर्न करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है. ही सेड दैट इज़ वन इम्पैक्ट, दिस मेंटल deterioration of the people, this mental trauma that the people have. But it also had another impact, the system of apartheid. वो ये था कि जब लोगों ने एक्नॉलेज किया कि हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, they were ready to fight, they were ready to revolt. And है ना, तो अपार्थाइड के टू वे रिएक्शंस हुए. एक, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम कम हैं, हम इंफीरियर हैं, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है. एंड दूसरा वाज रिएक्शन दैट दे सॉ वी आर ह्यूमन बींग्स, दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, व्हाट gives them the right to treat us this way, whatever is happening, it is all wrong and we need to raise our voices, है ना. तो ये दूसरा रिएक्शन था कि लोगों को इतना ज्यादा गलत लगा ये सिनेरियो दैट दे डिसाइडेड टू रेज देयर वॉइसेस. एंड कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम आपको दिया हुआ है चैप्टर में. ओके. So all these people, all these freedom fighters, they were men of great courage, wisdom, generosity, है ना. And they had it in them, वो अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार थे. And Mandela comments, he says that maybe इस लेवल का ऑपरेशन, इस लेवल के बुरे हालात से रूबरू होना जरूरी है if you have to form such strong character as a person. Okay, he said that कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने बीड़ा उठाया रिवॉल्ट करने का, फाइट करने का, so they have seen the worst of the oppression and hence they decided we have nothing else to lose. हमने अपना value, अपनी human dignity सब already lose कर दिया है. And if there is any way to win it back, if there is any way to show people what is just and what is unjust, this is our time to rise. And they did, है ना. इसीलिए कई सैम्पल पेपर्स में आई हैव सीन दिस क्वेश्चन वेयर दिस स्टेटमेंट इज फोकस्ड. इट इज सेड दैट इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, है ना. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकल रहा है इंसान के बुरे से बुरे हालात से रूबरू होना ज़रूरी है अगर अगर उस इंसान का इतना स्ट्रांग होके निकलना पॉसिबिलिटी बनानी है तो. So these people of South Africa, they have seen the worst scenarios, they have seen the worst conditions जहाँ उनको human beings तक consider नहीं कर रहे थे. And hence as a result, people of such strong characters were raised, okay, who were ready to fight with whatever it takes. Okay, so then he said that ये जो साउथ अफ्रीका है which is my country, not only is it rich economically, है ना, हमारे यहाँ ऑयल माइनरीज हैं एंड वी हैव दिस जेम्स, है ना, सोना चांदी डायमंड है हमारे यहाँ, इसकी माइंस हैं. लेकिन मैं मानता हूँ इन चीज़ों के अलावा साउथ अफ्रीका हैज़ अ वे मोर प्रेशियस रिसोर्स एंड दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स. जो साउथ अफ्रीका की जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वो साउथ अफ्रीका के सबसे बड़ी वेल्थ है. हु सेड दिस? नेल्सन मंडेला सेड दिस इन हिज बुक, है ना. और ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी जब inauguration ceremony was going on. Then he said that मेरे जो साथ वाले थे comrades, मतलब companions, ये जो war companions basically, ये जो मेरे comrades थे, मेरे जो साथी थे, जिन्होंने मेरी इस liberty, इस justice वाली struggle में मेरे साथ खड़े थे, मेरा साथ दिया, उन्हीं से मैंने असली मीनिंग ऑफ करेज सीखी थी. जब हम साथ में काम कर रहे थे, साथ में हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, इट इज़ फ्रॉम देम दैट आई लर्न द रियल मीनिंग ऑफ करेज. एंड ही सेड समय समय पे मैंने देखा कि कैसे हमारे साथ के जो मेन थे या जो हमारे साथ की जो विमेन थी, they were willing to risk their life just for the sake of idea of freedom, है ना. उस टाइम पे फ्रीडम या हालात बदलेंगे, ये सिर्फ एक आइडिया था, ये सिर्फ एक सोच थी. सच होगा नहीं होगा nobody knew, लेकिन
सिर्फ इस एक फ्रीडम के आइडिया के लिए, हालात बदल जाएंगे इस एक विचार के लिए, इस एक आइडिया के लिए, पीपल वर विलिंग टू गिव अवे देयर लाइव्स, है ना, वो अपनी जान को स्टेक पे रखने के लिए तैयार थे, स्ट्रगल करने के लिए तैयार थे. एंड ही सेड दैट मैंने देखा है कि किस किस हिम्मत के साथ द कॉमरेड्स with whom I worked, they used to stand rigid to all those waves of torture and attack, and they won't break. इतने ज़्यादा strong थे mentally ये लोग कि ये टूटते नहीं थे. So this was a kind of strength, this was a kind of resilience which even defies the imagination. कोई सोच भी नहीं सकता इतने ज़्यादा strong थे these freedom fighters, right? These people who were struggling for the justice. बद से बद हालात देखे, बुरे से बुरे हालात देखे, मार कुटाई क्या नहीं सहा, राइट? मतलब हद लेवल का वायलेंस दे हैव इंड्योर्ड, इवन देन दे केप्ट एक्सप्रेसिंग द आइडिया दे वर विद, है ना, दिस आइडिया ऑफ जस्टिस, दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी. इंसान सोच भी नहीं सकता इस लेवल की क्रूअल्टी दे हैव ऑल सीन टुगेदर. एंड ही सेड, तो कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही साथ वालों से, कॉमरेड से मैंने सीखा कि करेज क्या है. एंड ही सेड दैट, ये डेफिनेशन उससे मुझे करेज की मिली, दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, रादर इट इज द ट्रायम्फ ऑफ इट. करेज का मतलब ये नहीं है हमें किसी से डर नहीं लगता. करेज का असली मतलब ये है कि हमने डर को अपने सामने देखा है, उस डर को हमने झेला है, वी हैव ओवरकम इट, एंड उस डर को सामने देखने के बाद, इनकाउंटर करने के बाद, उसके थ्रू जाने के बाद, है ना, जो जीत हमने डर पे हासिल करी है, दैट इज द करेज. rather than saying absence of fear is courage, no. What is courage? Courage is overcoming the fear and securing the victory over it. डर को जीत में बदलना या डर को बेसिकली जीत लेना, that's what the courage is. Who said this? Nelson Mandela said this. और किससे उन्होंने ये definition of courage सीखी? From his comrades. Then he said, the brave man is not he who does not feel afraid, but the one who conquers that fear. He said, और उसी हिसाब से एक बहादुर आदमी, एक ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, रादर एक ब्रेव मैन वो इंसान है जिसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है, the one who has actually conquered that fear. Then he said, he gives us another line of his thoughts. He says that in this world, not a single person is born with hatred in his heart. अपने दिल में नफरत लेके कोई इंसान पैदा नहीं होता. No one is born with the hatred in them. It is the society which teaches us what to like, what not to like, what to love, what to hate. When human beings are born, we are born as clean as a slate. हमारे अंदर किसी भी तरीके की कंडीशनिंग उस टाइम पे नहीं होती है कि ना, कंडीशनिंग लाइक किसी के स्किन कलर के बेसिस पे उसको कम या ज़्यादा बताना है, किसी के इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे किसी को कम ज़्यादा बताना है, या उसकी कास्ट पे, या उसके रिलीजन पे, या उसकी कम्युनिटी पे, या उसके रीजन, लिंग्विस्टिक, किसी भी पैरामीटर के हिसाब से हम बायस्ड पैदा नहीं होते हैं. वी ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न एज क्लीन स्लेट, राइट? And it is the society that teaches us these things, right? To hate, to love, to accept, to not to accept. ये सब चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? सोसाइटी में आकर के सीखते हैं. And he said human beings have this nature to love more naturally than hate, है ना? अगर कोई इमोशन ह्यूमन बींग्स में प्रिवेलेंट है, दैट इज द इमोशन ऑफ लव रादर देन हेट्रेड. हेट्रेड हम समाज में आके सीखते हैं, कंडीशनिंग होती है हमारी तब हम सीखते हैं, लेकिन जो लव है, जो एक्सेप्टेंस है, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर टू सम एक्सटेंट इनबॉर्न होता है. ओके, ही सेड दैट. एंड ही सेड, अगर ह्यूमन बींग्स सोसाइटी में आ करके नफरत करना सीख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन करना सीख रहे हैं, देन way more easily they can be taught to love as well, they can be taught to accept as well, है ना? जैसे लोगों ने नफरत करना सीख लिया है, वैसे ही उनको प्यार करना और दूसरों को एक्सेप्ट करना भी सिखाया जा सकता है, एंड बल्कि जल्दी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार एक नेचुरल इमोशन है देन योर हेट्रेड. एक्सेप्टेंस इज अ नेचुरल इमोशन in comparison to your unacceptance. Okay. Even in the grimmiest times in the prison,
when my comrades and I were pushed to our limits. And he said that why do I have this faith in humanity? He said जब हम मुझे और मेरे साथ वालों को स्ट्रगल के टाइम पे जेल में पकड़ के ले जाते थे और हमें इनह्यूमन तरीके से मारा जाता था, जानवरों की तरह हमें पीटा जाता था, हमारे साथ बिल्कुल इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता था, एक्सट्रीम टॉर्चर वाज मेट आउट टू अस। इवन देन अगर मारते समय, पीटते समय, हमें ह्यूमिलिएट करते समय किसी भी जेल गार्ड है ना, जो गार्ड्स होते हैं जेल के, उनकी आंखों में अगर एक ग्लिमर ऑफ काइंडनेस, एक ग्लिमर ऑफ दिस सिंपैथी स्पॉट कर लेते थे नेल्सन मंडेला, तो उनके लिए वो ग्लिमर, वो ग्लिम्स, वो झलक भी काफी होती थी टू गो ऑन, कि भाई इसकी आंखों में आज मैंने झलक देखी कि इसे बुरा लग रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये समझ रहा है। heavy chances this world has potential to change, this society has potential to change, just that हमें इस प्रोसेस को कैटलाइज फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, लोगों को सेंस दिखाने की ज़रूरत है, सबके अंदर ह्यूमैनिटी है, छुप गई है, वी नीड टू गेट इट टू लाइट वंस अगेन। हु थॉट दैट? नेल्सन मंडेला थॉट दैट। किस टाइम पे? जब जेल में इनके साथ बहुत बुरा टॉर्चर हुआ करता था तब। so these were the things that used to help him go on. Okay, then he said, man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. He said, इंसान के अंदर की जो अच्छाई है, it is like a flame, है ना, ये एक लॉ की तरह है, रोशनी की तरह है, एंड ये एक ऐसी रोशनी है जो छुपाई जा सकती है फॉर सम टाइम, बट दिस गुडनेस, दिस ह्यूमैनिटी, इट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। इसको कभी बुझाया या खत्म नहीं करा जा सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ अस, ऑल द ह्यूमंस हैव गुडनेस इनसाइड देम। बस उस गुडनेस को क्या करने की ज़रूरत है? प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है, सामने लाने की ज़रूरत है। लेक्चर लंबा हो रहा है, चलो तीसरा वाला नेक्स्ट में करते हैं। All right, revise till here, and if you have any doubts, do ask me.